Dear student, Assalamu alaikum. In advanced accounting, chapter joint venture account. Today we discuss chapter joint venture account, no separate set of books method. And some method is when each co-venturer maintain a complete record of all the joint venture transactions. Relating to this method, today we discuss illustration 9, page 359, illustration 9. M and N entered into a joint venture for the purchase and sale of second-hand motor cars, agreeing to share profits and losses in the ratio of 3:2. On January 15, 1997, M bought 5 cars for rupees 43,000, and on January 20, he paid taxes and insurance rupees 1,600. On January 31st, 1997, he sold these cars for rupees 58,000, out of which he remitted rupees 11,000 to N, and the balance deposited into his own bank account. On January 31st, 1997, N bought 3 cars for rupees 36,000, and he paid taxes and insurance rupees 1,400, and repair charges amounting to rupees 2,000. He sold 1 car on February 2, 1997 for rupees 14,000, which he paid into his own bank account. M then took over the other cars at a valuation of rupees 26,000, and the venture was closed on February 10, 1997. Pass necessary journal entries in the books of M as well as in the books of N. Now we see one by one journal entries in the books of the M and as well as in the books of N. For journal entries, I am sharing a sheet. First, in the books of N, first in the books of the M purchased 5 second-hand motor cars for rupees 43,000. In the books of M, we pass the entries: joint venture account debit 43,000, bank account credit 43,000. And in the books of Y, we pass journal entry: joint venture debit M credit. Next, he paid taxes and insurance rupees 1,600. In the books of M, we pass the journal entry: joint venture account debit bank credit 1,600.
In the books of N, we pass journal entries joint venture account debit 1600 or M credit 1600.
इसमें डियर स्टूडेंट हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 9 को है, पेज 359 है, आप वहां से देख सकते हैं बुक से, इसको डिस्कस करते हैं। 10-15-20 मिनट हमने इसी को ऐड बैक करते हुए, तो नो कम टू द पॉइंट। We starting with illustration 9. Illustration 9, M and N entered into a joint venture. M और N जो है ये दोनों सेकंड हैंड मोटर कार्स का जो है आपस में इनका जो एग्री हुआ है, इन्होंने खरीद के उसको प्रॉफिट एंड लॉस जो रेशियो इनकी है 3:2 की, उसके हिसाब से इन्होंने जो काम करना है। अब नहीं खाती। Yes. Yes. इसमें 1 by 1 हम इसको देखते हैं आगे। फिर दार लवाया अब उसे की करना फिर जी इसमें अब हमने 1 by जो है एंट्रीज पास करनी है M की बुक्स में और N की बुक्स में। तो सबसे पहले ये है कि M ने जो है M bought 5 cars for rupees 43,000 and on January 20 he paid taxes and insurance rupees 1,600. On January 31st, 1997 he sold these cars for rupees 58,000, out of which he remitted rupees 10,000 to M and the balance deposited into his own bank account. और नेक्स्ट है N boards 3 cars for rupees 36,000 and he paid taxes and insurance rupees 1,400 and repair and charges amounting to rupees 2,000. He sold 1 car on February 2, 1997 for rupees 14,000, which he has paid
into his own bank account. M then took over the other cars at a valuation of rupees 26,000, and then the ventures was closed on February 10, 1997. Past necessary journal entries in the books of the M as well as in the books of N. अब हमने इसकी जो है जर्नल एंट्रीज पास करनी है, तो दोनों की बुक्स लेंगे, एम की भी और एन की भी। तो इसमें ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं, उस स्क्रीन में ये सोल्यूशन भी साथ साथ दिया गया है, आप अपनी बुक्स पे भी देख सकते हैं। अब सबसे पहले कि इन्होंने जो है एम ने 5 गाड़ियां जो कारें हैं खरीदी हैं 43,000 में, तो एम अपनी बुक्स में एंट्री पास करेगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट बैंक क्रेडिट। और अगर हम एन की बुक्स में देखें तो एन एंट्री पास करेगा ज्वाइंट वेंचर डेबिट और एम क्रेडिट 43,000 से। नेक्स्ट एंट्री है कि उसने जो है 1600 के खर्चे अदा कर दिए हैं एम ने, तो खर्चा हो गया ज्वाइंट वेंचर एम की बुक्स में डेबिट हो जाएगा और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। एन की बुक्स में अगर जाएं तो एन की बुक्स में वही ज्वाइंट वेंचर को हम डेबिट करेंगे 1600 से और एम को क्रेडिट कर देंगे 1600 से। इसके बाद एम ने ये जो कारें थी ये बेच दी हैं 58,000 में। अब जो कारें बेची हैं वो 58,000 में है, जिसमें से आउट ऑफ विच जिसमें से वो कह रहा है कि 11,000 जो है एन को दे दिया है, तो उसकी एंट्री पास करेगा। अब एम के पास जो है पैसे जो आ रहे हैं वो बैंक आ रहा 47,000 से, एन जो है 11,000 से, क्योंकि एन को पैसे जा रहे हैं 11,000 और ज्वाइंट वेंचर को क्रेडिट कर देंगे 58,000 से। अब यही एंट्री एन की बुक्स में देख लें तो एन जो एंट्री इसकी पास करेगा कि बैंक डेबिट, एन एंट्री पास करेगा बैंक डेबिट 11,000 और एम डेबिट 47,000 और ज्वाइंट वेंचर को 58,000 से क्रेडिट कर देगा। इसके बाद एन ने जो है 3 कारें जो है 36,000 में खरीदी हैं, उसकी एंट्री पास करेंगे एन की बुक्स में ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट बैंक क्रेडिट और एम की बुक्स में उसकी एंट्री पास करेंगे ज्वाइंट वेंचर डेबिट एन क्रेडिट 36,000 से। और इसके बाद इसने जो है एक्सपेंसेस किए हैं, एक्सपेंसेस की अब हम एंट्री पास करेंगे, तो एन अपनी बुक्स में एंट्री पास करेगा ज्वाइंट वेंचर डेबिट और बैंक क्रेडिट 3,400 से और एम की बुक्स में उसकी एंट्री पास करेंगे ज्वाइंट वेंचर डेबिट और एन क्रेडिट 3,400 से। क्योंकि 1400 और 200 ये रिपेयर के 3,400 रुपया इसका बनता है। इसके बाद इसने एक कार जो है वो 14,000 में इसने सेल की है और इसके पैसे उसने अपने ऑन अकाउंट बैंक में रखे हैं, तो एन इसकी एंट्री पास करेगा बैंक डेबिट ज्वाइंट वेंचर क्रेडिट, क्योंकि एन इसके पैसे वसूल कर रहा है, तो बैंक डेबिट ज्वाइंट वेंचर क्रेडिट 14,000 से। एम अपनी बुक्स में एंट्री पास करेगा क्योंकि ये पैसे एन के पास है, तो एन को डेबिट कर देगा और ज्वाइंट वेंचर को क्रेडिट कर देगा 14,000 से। नेक्स्ट जो है 2 कारें जो बच गई थी रिमेनिंग अदर्स जो हैं वो एम ने टेक ओवर कर ली है, एम ले गया है 26,000 में, तो एम अपनी बुक्स में एंट्री पास करेगा परचेजेस डेबिट ज्वाइंट वेंचर क्रेडिट 26,000 से। और जबकि एन की बुक्स में हम ये एंट्री पास करेंगे तो एन की बुक्स में एम को डेबिट कर देंगे और ज्वाइंट वेंचर को क्रेडिट कर देंगे 26,000 से। अब ये सारी जो इन्होंने गाड़ियां परचेज की थी वो सारी की सारी सेल आउट हो चुकी हैं या टेक ओवर हो चुकी हैं, तमाम एंट्रीज जो है वो पास हो चुकी हैं। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस के लिए दोनों की बुक्स में जो है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे
तो सबसे पहले एम की बुक्स में हम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे। तो जॉइंट वेंचर डेबिट है तो डेबिट साइड पे एंट्री लिखते जाएंगे, और अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे। अब हम सबसे पहले एम की बुक्स में चलते हैं। एम में अब फर्स्ट एंट्री में जॉइंट वेंचर डेबिट था, तो जॉइंट वेंचर की डेबिट साइड पे लिखेंगे 43,000, और डेबिट साइड पे बैंक परचेजेस आ जाएंगी। इसी तरह फिर उसने मजीद खर्चे किए दूसरी एंट्री में, तो जॉइंट वेंचर डेबिट है तो डेबिट साइड पे लिखेंगे बैंक एक्सपेंसेस 1600। नेक्स्ट थर्ड एंट्री जो है उसमें जॉइंट वेंचर क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बैंक 47,000 एंड 11,000। उसके बाद जो है नेक्स्ट एंट्री है जॉइंट वेंचर डेबिट और एन, तो डेबिट साइड पे एन लिखेंगे 36,000 से परचेजेस आ गई हैं मोटर कार्स। इसके बाद एक्सपेंसेस कर दिए हैं उसने, तो जॉइंट वेंचर डेबिट है तो डेबिट साइड पे फिर लिखेंगे एन 3,400। इसके बाद जो है नेक्स्ट एंट्री में परचेजेस की हैं और जॉइंट वेंचर यहाँ क्रेडिट हो गया है, तो क्रेडिट साइड पे यहाँ लिखेंगे परचेजेस 26,000। अब इसमें ये जो जितनी भी ट्रांजैक्शंस थी एम की बुक्स में वो जॉइंट वेंचर वाली वो हमने पोस्ट कर दी हैं। अब इसका बैलेंस करेंगे, तो इसका जब हमने बैलेंस किया तो इसकी क्रेडिट साइड बढ़ गई है, और क्रेडिट साइड का जो बैलेंस आया है वो आया है 98,000। अब 98,000 जो है, और जो डिफरेंस आया इन दोनों का डेबिट और क्रेडिट का, तो वो आ गया है 14,000, 14,000। अब 14,000 में से 3/5 जो है वो मिलना है एम को, और 2/5 मिलेगा एन को। तो इनको हमने ये 14,000 डिवाइड कर दिया, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस आ गया है 8,400, ये एम का है, और एन का आ रहा है 5,600। 3 और 2 की रेशो से हमने इनमें तकसीम कर दिया, और यही एंट्री पास कर देंगे जॉइंट वेंचर डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस जो शेयर इसका एम का बनता है 8,400, और एन क्रेडिट हो जाएगा 5,600 से। अब इसके बाद एम अपनी बुक्स में एन का अकाउंट बनाएगा, तो जब एन का अकाउंट बनाया तो एन अगर डेबिट है तो डेबिट साइड पे उसकी एंट्रीज दर्ज कर दी हैं, और अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे। तो इसमें 1 बाय 1 हम चलते हैं। तो थर्ड एंट्री इसमें थी एन, उसमें डेबिट है तो उसकी डेबिट साइड पे जॉइंट वेंचर हमने 11,000 रुपया लिख दिया है। इसके बाद फिर एन नेक्स्ट एंट्री में क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे जॉइंट वेंचर लिख दिया है 36,000। अब उसके बाद इसमें एन ने मजीद 3,400 का खर्चा किया था, इसमें क्रेडिट है तो इसकी क्रेडिट साइड पे जॉइंट वेंचर लिखेंगे 3,400। उसके बाद नेक्स्ट जो है एन फिर डेबिट हुआ है 14,000 से, तो डेबिट साइड पे जॉइंट वेंचर लिख देंगे 14,000। इसके बाद इसका जो प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट में वो क्रेडिट है तो उसकी क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे जॉइंट वेंचर 5,600। अब इसका हम बैलेंस करेंगे, तो जब हमने इसका बैलेंस किया तो क्रेडिट साइड बढ़ गई है 45,000, तो जब हमने इसका डिफरेंस निकाला तो वो 20,000 है। इट मीन्स कि इसकी क्रेडिट जो है बैलेंस आया है, तो क्रेडिट बैलेंस मीन्स कि एम ने इसको अदा करना है। तो अब एम जो है इसको अदा करेगा, एम इसको ये पेमेंट करेगा, तो उसकी एंट्री पास कर देंगे एन डेबिट और बैंक क्रेडिट। तो ये इस एंट्री से जो एम की बुक्स क्लोज हो जाएंगी। इसी तरह फिर हम जाएंगे एन की बुक्स में, एन की हमने एंट्रीज पास कर ली थी, उसके लेजर में चले जाएंगे, उसके लेजर में 1 बाय 1 हम जाएंगे। उसी तरीके से जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट है तो वो डेबिट साइड पे सारी एंट्रीज हमने लिख दी है, और इसी तरह क्रेडिट साइड पे। अब जब हमने इनका बैलेंस किया तो वही 98,000 क्रेडिट बैलेंस आया है, और वो डिफरेंस वही 14,000 का 14,000 का जो है डिफरेंस आ गया है। अब ये 14,000 वही 3 और 2 की रेशो से आ गया है, तो क्योंकि यहाँ एन का जो प्रॉफिट है वो 5,600 है और बकाया 8,400 एम को जाएंगे, तो ये एन की बुक्स में हम एंट्री पास करेंगे ज्वाइंट वेंचर डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस 5,600 और एम 8,400, और ज्वाइंट वेंचर 14,000 से डेबिट हो जाएगा। इसके बाद फिर एन की बुक्स में एम का अकाउंट बनाएंगे, उसी तरीके से
जो एम है डेबिट है तो डेबिट साइड पे उसकी एंट्रीज करते जाएंगे, क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे। तो इसमें हमने 1 बाई 1 उसकी एंट्रीज चेक की। तो सबसे पहले के फर्स्ट एंट्री में वो क्रेडिट था, तो क्रेडिट साइड पे हमने लिख दिया ज्वाइंट वेंचर 43,000। उसके बाद फिर दूसरी एंट्री में फिर क्रेडिट था, तो वो आ गया क्रेडिट साइड पे ज्वाइंट वेंचर 1,600। इसके बाद जो है 47,000 में फिर ये थर्ड एंट्री में जो डेबिट है तो डेबिट साइड पे आ गया है ज्वाइंट वेंचर 47,000। नेक्स्ट इसके बाद जो है इसका जो है 2600 जो है ये इसने कारें टेक ओवर की थी, तो इसमें डेबिट है तो डेबिट साइड पे ज्वाइंट वेंचर 26,000 लिख दिया। इसके बाद इसका बैलेंस, इसका जो प्रॉफिट आया था 8,400, तो उसमें वो क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे ज्वाइंट वेंचर लिख दिया 8,400। अब इसका बैलेंस किया तो इसका डेबिट बैलेंस 73,000 आया है, क्रेडिट जो साइड है वो है इसकी 53,000, डिफरेंस वही 20 का आ गया है। तो 20 का तो ये पैसे वसूल करेगा किससे, एम से। तो एम ये एन की बुक्स में एंट्री फिर पास करेगा बैंक डेबिट 20,000 और एम क्रेडिट 20,000। इससे ये जो है सारी की सारी एंट्रीज जो है वो क्लोज हो जाती हैं। तो ये दोनों के अकाउंट्स जो हैं वो क्लोज हो गए हैं। अब इसके अलावा जो है इसमें अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो वो मुझे बताएं। और आज का जो लेक्चर है वो इख्तिताम पज़ीर होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।